جی وائس کلیئر ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اچھا جی۔ ہم نے جو ہے وہ معرفہ نکرہ کی کل بحث پڑھ لی تھی۔ آج جو ہے انشاءاللہ العزیز ہم نحوی ترکیب کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ یہ نحوی ترکیب کیا چیز ہے؟ نحوی ترکیب سمجھنے جو ہم نحو پڑھ لیں نا، علم النحو پڑھ لیں، یہ علم النحو کی سمجھنے پریکٹس ہے ایک۔ اس کے اندر ہر ایک چیز کی پریکٹس ہوتی ہے نحوی ترکیب کے اندر نا۔ آپ نے معرفہ نکرہ پڑھا ہے، اس کی پریکٹس ہوگی۔ آپ نے اعراب سے متعلق باتیں پڑھی ہیں، اس کی پریکٹس ہوگی۔ آپ نے جو ہے وہ آ، یہ مرفوعات منصوبات مجرورات کے نام وغیرہ یاد کریں، اس کی پریکٹس ہوگی۔ آپ نے اسم فعل حرف پڑھا ہے، اس کی پریکٹس ہوگی۔ آپ نے صرف کے اندر گردانے وغیرہ پڑھی ہیں، اس کی بھی اس کے اندر پریکٹس ہوگی۔ ہر چیز جو آپ نے عربی گرامر کے اندر پڑھی ہے نا، کہ کس طرح آپ نے جو ہے گردانے یاد کری ہیں، کس طرح آپ صیغہ پہچانتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایک ایک چیز اس کی سمجھنے پریکٹس، اس کا اجرا یہ نحوی ترکیب کے اندر ہوتا ہے۔ صحیح؟ اگر آپ کو نحوی ترکیب آتی ہے صحیح طریقے سے، تو گویا کہ آپ کو ترجمہ کرنا بھی آتا ہے، آپ کو ترکیب اعراب لگانا بھی آتا ہے، آپ کو یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اگر آپ کو نحوی ترکیب نہیں آتی اور آپ کو صرف کی پوری کتاب یاد ہے، نحو کے پورے اصول یاد ہیں، تو گویا کہ آپ پریکٹس کے اندر اچھے نہیں ہیں۔ صحیح؟ تو نحوی ترکیب کا آنا انتہا درجے ضروری ہے۔ اب یہ ہماری جو کلاس چل رہی ہے، کون سی کلاس چل رہی ہے مجھے نمبر یاد نہیں ہے، بہرحال جو بھی کلاس چل رہی ہے ہماری، اب سے لے کر سبنے کورس کے آخری دن تک، آخری کلاس تک ہم نحوی ترکیبیں کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ترجمہ کرنا بھی سیکھنا ہے، وہ بھی نحوی ترکیب کے ذریعے سے سیکھیں گے۔ صحیح؟ ہمیں کوئی چیز یعنی کہ عبارت کے اندر کوئی تحقیق وغیرہ دیکھنی ہے، وہ بھی نحوی ترکیب کے ذریعے سے ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو نحوی ترکیب آتی ہے تو گویا کہ آپ کو عبارت پر اعراب لگانا بھی آتا ہے، ترجمہ کرنا بھی آتا ہے، سب کچھ آتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو نحوی ترکیب کرنا نہیں آتی تو آپ نحو کے اندر، عربی گرامر کے اندر بہت کمزور ہیں۔ صحیح؟ تو اس بات کا تہیہ کر لیے گا کہ جو طلبہ ابھی یہاں پہ پڑھ لیں، سارے کے سارے طلبہ اپنے ذہن کے اندر ایک بات بٹھا لیے گا کہ اگر آپ اس چیز کے اندر کمزور ہوئے، صحیح، تو گویا کہ آپ کی بنیاد کمزور ہوگی۔ صحیح؟ اور اگر آپ اس چیز کے اندر مضبوط ہوئے تو آپ آگے تک مضبوطی کے ساتھ چلتے رہو گے۔ اب بندہ کمزور کب ہوتا ہے؟ بندہ جو ہے طالب علم کمزور اس وقت ہوتا ہے جب وہ استاد کی ہدایت پر عمل نہیں کرتا۔ صحیح؟ ابھی آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز حل کریں، آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے صیغہ حل کر کے بھیجیں، آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے گردان یاد کر کے بھیجیں۔ صحیح؟ تو اس کے اندر کچھ طلبہ، سارے تو نہیں، اکثریت تو ماشاء اللہ سے اچھی ہے، لیکن کچھ طلبہ کچھ طالبات وہ اس کے اندر غفلت کرتے ہیں۔ صحیح؟ اگر آپ کی غفلت جاری رہی، آگے تک رہی یہ غفلت، تو اس کے اندر آپ کو لمبا نقصان ہوگا۔ اگر آپ کی غفلت ابھی ختم ہو گئی تو جو غفلت آپ نے کری ہے وہ پوری ہو سکتی ہے، اس کا جو نقصان ہے وہ آگے جا کے پورا ہو سکتا ہے، کور ہو سکتا ہے۔ صحیح؟ تو یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے، جو آپ لوگوں کو ہوم ورک وغیرہ دیا جاتا ہے، براہ کرم اس کو آپ لوگ حل کر کے بھیجا کریں لازمی۔ صحیح؟
देखें, आप लोगों की क्लास चल रही होगी, क्लास चलते चलते मिसाल के तौर पे हमारे सामने नावी तरकीब की मिसालें आएंगे। मैं आप लोगों को 2 से 3 मिनट का वक्फा दूंगा मैं आप लोगों को, कि आप उस मिसाल को हाथ के हाथ क्लास के अंदर हल करें। फिर मैं उस मिसाल को हल भी करवाऊंगा या किसी तालिब इल्म के जरिए से हल करवाऊंगा। ये जो मैं आपको 2 से 3 मिनट का वक्फा दूंगा ना, इसके अंदर आपने किसी और काम में नहीं लगना। चलें, ये मजबूरी समझ में आती है कि क्लास के अलावा, अवलन तो ये भी खैर जहन में नहीं आती, लेकिन क्लास के अलावा जो है किसी बंदे के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट भी नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी अपने आप को क्लास के अंदर बाउंड कर दिया है, अपना टाइम आपने दे दिया है, तो अब उस टाइम को आपने सही जगह पे ही लगाना है। सही। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि फला इबारत के नावे तरकीब को अपनी कॉपी पे लिख के, भले आप रफ में लिखें और उसको हल करें, तो आप लाजमी हल करिएगा। सही। नाहवी तरकीब जब मैं हल करवाता हूँ ना, तो कुछ उसूल लिखवाता हूँ, तरकीब करवाता हूँ, और कुछ इजरा भी करवाता हूँ हाथ के हाथ, ताकि तरकीब में मजबूती आ सके, क्योंकि ये बहुत मुश्किल चीज़ है, आसान चीज़ नहीं है, ये बात याद रखिएगा। सही। तो आप लोगों को इजरा भी अच्छा खासा करवाया जाएगा, लेकिन इजरा पता किसे कहते हैं? इजरा इसे नहीं कहते कि यहाँ पे बैठ के मैं हल करवाऊं और आप लोग देखते रहें, इसे इजरा नहीं कहते। इजरा कहते हैं कि तालिब इल्म उस चीज को खुद हल करे, जहन पर जोर डाले, और उसके अंदर मिसाल के तौर पर अगर कोई गलती वगैरह आ जाए तो उसकी इस्लाह भी करवाए ना, इसको इजरा कहते हैं। सही। अगर मैं आप लोगों को तरकीब दूं और आप ऐसी उसको देखें, बस देखते देखते हल कर दें कि ये बन रहा है, ये बन रहा है, तर्जुमा वगैरह भी ऐसे ही कर दें, बाकायदा प्रॉपर तौर पे लिख के हल ना करें, तो इसके अंदर आपको, यानी कि आपकी सही से गलती की इस्लाह नहीं हो सकती। सही। तो आपने अपनी गलतियों की, जो आप लोग गलती करोगे उसकी इस्लाह भी करनी है। ये नहीं कि खाली आप लोगों ने जो है वो बस क्लास के अंदर आके और बैठना है और खाली सबक को सुनना है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि भाई मैं आप लोगों को 3 मिनट का या 2 मिनट का वक्फा दे रहा हूँ, आप ये तरकीब हल करें, अपने पास रफ में हल करें, या कुछ भी कहीं पर भी आप लोग यानी कि लिख के उस तरकीब को हल करें, उसका तर्जुमा खुद करें, तो बराए करम ये काम आप लाजमी करिएगा। सही। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई फला तरकीब आपने हल करके जमा करवानी है, तो लाजमी उस तरकीब को हल करके जमा करवाएं। इससे होगा ये कि जो आप लोग गलती करेंगे, आप लोगों को आपकी गलती का एहसास होगा, पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। वरना अगर आप लोगों की अभी बुनियाद अच्छी नहीं हुई, तो आगे जाके तरकीबें समझना बहुत मुश्किल होगा। सही। आगे जाके जो है ना तरकीबें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, ये बात याद रखिएगा, अगर आपकी अभी बुनियाद अच्छी नहीं हुई तो। सही। अच्छा जी। तो ये आप लोगों के सामने सबक नंबर 27 है। सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नावे तरकीब करते हैं हम जुमले की। हमारे सामने कोई ना कोई जुमला आता है, हम उस जुमले की नावे तरकीब करते हैं। सही। जैसे कि मिसाल के तौर पे जुमला है, ज़ईद काइम। सही। अभी इस तरकीब के लिए एक चीज, यानी कि तर्जुमा सीखने के लिए लुगत का सीखना भी जरूरी है, लुगत देखनी भी आनी चाहिए। ये भी इंशाल्लाह आगे आप लोगों को सिखाएंगे। सही। अच्छा जी। लेकिन जब तक मैं आपको लुगत देखना नहीं सिखा रहा, तब तक मैं आपको कलिमात के कुछ ना कुछ माना वगैरह बताता रहूंगा। आपने उस माने को याद रखना है, खाली करना नहीं है, याद रखना भी है। सही। अभी हमारे सामने एक जुमला है, जईद और काइम। हमारे सामने जब भी कोई इबारत आती है, अरबी इबारत वगैरह आती है, उस पर जबर जेर पेश लगा हुआ नहीं होता। कुरान करीम में तो लगा हुआ है, लेकिन हमारे सामने हदीस मुबारक आ गई या अरबी की कोई किताब आ गई, तो उसमें आपको जबर जेर पेश लगा हुआ उमूमन नजर नहीं आएगा। सही। इस तरह आपको लिखा हुआ नजर आएगा। अब इस लिखे हुए का माना किस तरह निकालना है,
और इस लिखे हुए पे ज़बर ज़ेर पेश एराब वगैरह किस तरह लगाना, ये हमारा खुद का काम होता है। सही। अच्छा जी, अब हमारे सामने मिसाल के तौर पे ये जुमला आ गया। सबसे पहले ये देखना है कि जुमला शुरू कहाँ से हो रहा है। अब ये जैद कलमे से शुरू हो रहा है जुमला, और आपको पता होगा कि ये जैद कलमा जो है ये इसम है। क्या है ये? इसम है। सही। जब आपको ये पता चल गया कि ये जैद कलमा इसम है और जुमले के शुरू में आ रहा है, इसम भी है और जुमले के शुरू में आ रहा है। सही। तो उसूल जरा अपने जहन के अंदर याद रखें कि जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया किसे कहते हैं? आप लोगों ने जुमले की तकसीम पढ़ी है। नंबर एक जुमला इस्मिया, नंबर दो जुमला फेलिया। ये आप लोगों ने तकसीम पढ़ी है। सही। इस तकसीम के एतबार से अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये जुमला कौन सा बन रहा है, तो तलबा को पता है कि जुमले का पहला जुज इसम है तो जुमला इस्मिया बनेगा, जुमले का पहला जुज फेल है तो जुमला फेलिया बनेगा। सही। यहाँ पे कौन सा जुमला बन रहा है? ये जुमला इस्मिया बन रहा है क्योंकि पहला जुज जैद इसम है। सही। तो जुमला इस्मिया का पहला जुज, जुमला इस्मिया का पहला जुज मुबतदा होता है। अब ये जैद, ये जुमला इस्मिया का पहला जुज है। सही। इसम है तो हम इसको क्या कहेंगे? मुबतदा। हम इसको इसम नहीं कहेंगे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा है। वैसे हम क्या कहेंगे इसको? मुबतदा। सही। दूसरा उसूल जरा समझें कि हर मुबतदा के बाद उसकी खबर आती है। हर मुब्तदा, जब भी आपके सामने मुब्तदा आएगा, उस मुब्तदा के बाद उसकी खबर लाजमी आएगी। सही। अच्छा जी, अब यहाँ पे जैद जब मुब्तदा बन गया तो कायम क्या बनेगी? इस जैद मुब्तदा की खबर। सही। मुब्तदा भी आ गया हमारे सामने और खबर भी आ गई हमारे सामने, दोनों चीजें आ गई। ये हम कौन सा जुमला पढ़ लें? जुमला इस्मिया। सही। अच्छा, जुमले की आप लोगों ने दो किस्में पढ़ी हैं। नंबर एक जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। एक किस्म तो आपने ये पढ़ी है और एक किस्म आपने पढ़ी है जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। सही। अब जुमला खबरिया किसे कहते हैं? कि जिसमें खबर दी जा रही हो। इंशाइया किसे कहते हैं? कि जिसमें खबर नहीं दी जा रही हो। सही। बाकी इंशाइया की आपने 12 अक़साम पढ़ी हैं, अमर नहीं, इस्तिफाम, तमन्नी, तरज्जी, निदा, उकूद, दर्ज, तखसीस, कसम, ताज्जुब, दुआ। ये आपने 12 अक़साम पढ़ी हैं। सही। तो जुमला खबरिया किसे कहते हैं? जिसमें खबर दी जाए। इंशाइया जिसमें खबर ना दी जाए। अब ये हमें पहचानना है, जब भी हमारे सामने मुब्तदा खबर आ गया, अब हमने इसको जुमला बनाना है तरकीब के एतबार से। किस तरह? हम कहेंगे कि मुब्तदा खबर मिलकर जुमला, अभी जुमला इस्मिया है या फेलिया है पहले ये बताना है। यह है जुमला इस्मिया। अच्छा, खबरिया है या इंशाइया है? अब ये कैसे पता चलेगा भाई कौन सा खबरिया है कौन सा इंशाइया है? तो तर्जुमा करके देखेंगे। जईदुन काइमुन का तर्जुमा है, जैद का माना जैद है, काइम का माना है खड़ा होने वाला। सही। तो तर्जुमा क्या होगा? जैद खड़ा होने वाला है। सही। जैद खड़ा होने वाला है या खड़ा हुआ है। सही। इस तरह भी तर्जुमा हो सकता है इसका। अच्छा जी, तो ये इसके अंदर खबर दी जा रही है कि भाई जैद खड़ा होने वाला है, तो ये हो गया खबरिया। अच्छा, ये तरकीब हमारी पूरी हो गई। तरकीब क्या हो गई? पूरी हो गई। अब हमें इसका एराब जानना है कि कलमे पर क्या क्या एराब आएगा।
हम इसको जैदन पढ़ेंगे, जैदिन पढ़ेंगे, जैदुन पढ़ेंगे, काइमन पढ़ेंगे, काइमिन पढ़ेंगे, काइमुन पढ़ेंगे। तो देखें, हमने तरकीब में इसको क्या बनाया, मुब्तदा। मुब्तदा, अब आप मुझे बताएं कि मरफूआत में से है, मंसूबात में से है, मजरूरात में से है। तो मजरूरात तो आपने दो पढ़े, मजरूर बिहरफ जर और मुज़ाफ इलैह। अब ये ना मजरूर बिहरफ जर है ना मुज़ाफ इलैह है। मंसूबात 12 पढ़े हैं, मफूल मुतलक, मफूल बिही, मफूल फी, मफूल लहू, मफूल माहू, हाल, तमीज़, मुस्तस्ना। अफ़ाल नाकिसा की खबर, उर्फ मुशब्बह बिल फ़िल का इसम, मा वाला मुशाबह बिल इसम की खबर, लाइन नफ़ी जिन्स का इसम। ये 12 मंसूबात आपने पढ़े ही हैं, उनके अंदर से नहीं है। मरफुआत कितने पढ़े, मरफुआत आपने 8 पढ़े। फाइल, नाइब फाइल, मुबतदा, खबर। अब यहाँ पे ये क्या बन रहा है, मुबतदा, ये क्या बन रही है, खबर। मुब्तदा और खबर दोनों किसके अंदर से होते हैं, मरफुआत के अंदर से होते हैं। जब मरफुआत के अंदर से हैं तो जैद भी हालत रफी के अंदर हो गया और काइम भी हालत रफी के अंदर हो गया, क्योंकि दोनों मरफुआत में से हैं। और ये दोनों इसमें मुतमक्किन के अंदर मुफरद मुनसरिफ सही हैं, आप लोगों को पता है, काइम भी और जैद भी। अब जब ये मुफरद मुनसरिफ सही है, हालत रफ़ी है, तो मुफरद मुनसरिफ सही का एराब हालत रफ़ी के अंदर जम्मा के साथ आता है। तो हम पढ़ेंगे ज़ैदुन काइमुन। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि हम ज़ैदुन क्यों पढ़ रहे हैं, ये ज़ैदुन पढ़ने की वजह क्या है। काइमुन क्यों पढ़ रहे हैं, काइमुन पढ़ने की वजह क्या है। सही। ये मैंने एक तरकीब कराई है। अभी मुमकिन है कि आप लोगों के जहन के अंदर सवालात का ढेर हो, मुमकिन है बहुत सारी बातें हों कि ये क्या चीज़ है जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी। तो अभी मैं आपको 2 से 3 मिनट का वक्फा दे रहा हूँ, जो भी मैंने लिखा है इसको अपने पास नोट करें, इसको अच्छी तरह जहन के अंदर बिठाएं, फिर मैं दूसरी तरकीब करूंगा। सही। अभी मैं आपको 2 से 3 मिनट का वक्फा दे रहा हूँ, अच्छी तरह जहन में इसको बिठा लें।
अच्छा जी, आगे देखें। यहाँ पर जो है एक बात और जहन में रखें, एक उसूल और जहन में रखें कि मुबतदा उमूमन, उमूमन का मतलब क्या होता है कि समझ लें कि 95% सही, लेकिन 5% उसूल के खिलाफ भी आता है ना। तो मुब्तदा उमूमन मारफा होता है और खबर उमूमन नकरा होती है। अब यहाँ पर इसी मिसाल में देख लें कि जैद आलम होने की वजह से मारफा है, कायम ये मारफा की 7 अकसाम के अंदर नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा, नकरा होगा। सही। अच्छा जी, अगली मिसाल देखें आप। अगली मिसाल है अल्लाह अकबर। सही। अकबर का तर्जुमा होता है सबसे बड़ा। सही। मुकम्मल तर्जुमा क्या होगा, अल्लाह सबसे बड़े हैं। सही। अब उसकी तरकीब करनी है, किस तरह करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि जुमला इस्म से शुरू हो रहा है या फेल से शुरू हो रहा है। अगर इस्म से शुरू हो रहा है तो ये जुमला इस्मिया कहलाएगा। सही। अगर फेल से शुरू हो रहा है तो जुमला फेलिया कहलाएगा। ये शुरू हो रहा है लफ्ज अल्लाह से और लफ्ज अल्लाह इस्म है। अब जब इस्म से शुरू हो रहा है तो जुमला जब इस्म से शुरू हो तो उस पहले इस्म को जो मारफा हो, सही, क्योंकि अपना मुब्तदा बनेगा ना ये, तो ये मुब्तदा कहलाएगा। सही। तो मुब्तदा के अंदर क्या बातें होना शर्तें, पहली बात ये कि जुमले के शुरू में हो। आगे जाके हम पढ़ेंगे मुब्तदा मौखर, इस तरह भी सूरतें आती हैं कि मुब्तला बाद औक़ात बाद में आ जाता है, इब्तिदा में नहीं आता, बाद औक़ात बाद में आता है। वो हुक्म के एतबार से बाद में आ रहा है, हकीकतन वो पहले ही होता है। भाई ये अभी हम नहीं पढ़ ले, अभी हम आगे पढ़ेंगे ये बात ना। लेकिन इतनी बात ध्यान में रख लें कि जुमला इस्मिया का पहला जुज, इब्तिदाई जुज, उसको मुब्तदा कहते हैं। भाई जुमला इस्मिया का इब्तिदाई जुज उसको मुब्तदा कहते हैं और ये मुब्तदा मारफा होता है। तो यहाँ पे मुब्तदा जुमला इसमी जुमले के शुरू में आ रहा है, पहली बात। मारफा भी है। सही। दूसरी बात, दोनों बातें पाई जा रही हैं कि जुमले के शुरू के अंदर हो, मारफा हो, और जुमले के शुरू में इस्म हो, मारफा हो, तो ये दोनों बातें पाई जा रही हैं। और अकबर क्या है कि जब भी आपके सामने मुब्तदा आएगा लाजमन कोई ना कोई खबर भी आएगी। तो ये अकबर क्या बन रहा है, खबर। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर क्या कहेंगे, किस तरह कहेंगे, मुब्तदा खबर मिलकर, अब ये जुमला बनाएंगे हम। सही। तो सबसे पहले जुमला कौन सा है, ये जुमला इस्मिया है। खबरिया है या इंशाइया है, तो ये खबरिया है, खबर दी जा रही है कि अल्लाह सबसे बड़े हैं। तो जुमला इस्मिया खबरिया हुआ, ये इसकी तरकीब हो गई। अब एराब किस तरह लगाएंगे। लफ्ज अल्लाह मुब्तदा बन रहा है, मुब्तदा मरफूआत के अंदर से होता है, और लफ्ज अल्लाह है भी मुफरद मुनसरिफ। सही। तो हालत रफ़ी के अंदर जम्मा आ जाएगा। और अकबर खबर बन रहा है, ये भी मरफूआत के अंदर से है और है भी मुफरद मुनसरिफ। सही। तो हालत रफ़ी के अंदर जम्मा आ जाएगा, अल्लाहु अकबर। सही। अल्लाहु अकबर, ये इसका एराब हो जाएगा। अगली तरकीब, अभी इसको जो है आप लोग अच्छी तरह अपने पास उतार लें। अगली तरकीब ये आप लोगों ने हल करनी है। सही।
तरकीब मैं यहाँ लिख देता हूँ। अपने पास रफ कॉपी में हल करें, मैं 2 मिनट का वक्फा दे रहा हूँ। अलजन्ना हक, जन्नत का माना जन्नत होता है, हक का माना क्या होता है? बरहक होना, हक होना। सही। तो ये इसका माना हो गया। अब ये तरकीब अपने पास कॉपी में हल करें। हल करने के बाद अपना अपना हाथ उठाएं कि जिन लोगों ने हल किया है। पहले कॉपी में हल करें, हल करने के बाद हाथ उठाएं। सही। चलें। देखें, 3 चीजें हल करनी है। नंबर 1 तरकीब, नंबर 2 एहराब, नंबर 3 तर्जुमा। ये 3 चीजें आपने हल करनी है। सही। अच्छा जी, जल्दी जल्दी हल करें जी, जल्दी जल्दी हल करें। अभी खाली 20-22 साल में नहीं हल करा है। जल्दी जल्दी हल करें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
अच्छा जी। जी सैयद नूर फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बताएं क्या हल करा है। अल जन्नतु मुब्तदा अच्छा, इस हक्कु मुब्तदा खबर। क्यों बनाया। जुमला इस्मिया है और उसका मुब्तदा होता है। कैसे पता चला जुमला इसमें ही है। इसका पहला हर्फ इस्म है। अलजन्ना इस्म है, ये कैसे पता चला। नाम है। जन्नत तो किसी का नाम नहीं है। अलिफ लाम आ रहा है ना शुरू के अंदर। जी। हाँ, अलिफ लाम की वजह से कलमा जो होता है वो इस्म कहलाता है ना। जी। सही। अच्छा, आगे तरकीब क्या जी। होगी। मुब्तदा खबर जुमला इस्मिया है, इसलिए मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होगा। तर्जुमा क्या होगा। जन्नत हक है। जन्नत हक है। एराब क्या होगा। जम्मा। अब पढ़ के बताएं। अल जन्नतु हक्कु। अल जन्नतु हक्कुन। तो जन्नत पे जम्मा क्यों पड़ा। मरफूआत में से है, इसलिए हालत रफ़ई में जम्मा आएगा। और हक्कुन पे जम्मा क्यों पड़ा। वो भी मरफूआत में से है। बिल्कुल सही। जजाकल्ला माशाल्लाह। अच्छा जी। बस तलबा एक बात जहन के अंदर रख लें कि यहाँ पे जो है वो आप लोगों से मशक करवाई जाएगी, और यकीनन यकीनन कोई ना कोई गलती कोई ना कोई तालिब इल्म करेगा। तो बस उस गलती करने से नहीं डरना, इस बात से नहीं डरना कि मुझसे गलती हो जाएगी। ये जो आपके जहन में अगर खौफ आ गया कि मुझसे गलती हो जाएगी, बस ये खौफ आपको तबाह कर देगा। सही। अगर आपके जहन में ये खौफ आ गया कि मुझसे गलती हो जाएगी इसलिए मैं जो है वो हल नहीं कर रहा या मैं हाथ नहीं उठा रहा, ये जो गलती है, ये जो खौफ है ना, ये आपको तबाह कर देगा, आपको ख़त्म कर देगा। नाहवी तरकीब के अंदर आज भी मुझसे गलतियां होती हैं। सही है। नाहवी तरकीब में आज भी मुझसे गलतियां होती हैं। सही। और नाहवी तरकीब असल में बहुत बारीक चीज़ है, बहुत बारीक सी चीज़ है। सही। इसके अंदर गलती से बचना बहुत मुश्किल होता है, उतना आसान नहीं होता। सही। क्योंकि यहाँ से भी उसूल आ रहे होते हैं, यहाँ से भी आ रहे होते हैं, हर तरफ से उसूलों ने समझने जकड़ा हुआ होता है। बाद औक़ात एक एक जुमले की चार चार पांच पांच तरकीब हो जाती हैं और सारी सही होती हैं। बाद औक़ात सारी नजर आ रही होती हैं कि सही हो रही हैं, लेकिन खाली एक सही होती है। सही। तो अगर आपके जहन के अंदर ये खौफ आ गया कि आप नाहवी तरकीब के अंदर गलती करेंगे, इसलिए आप नाहवी तरकीब करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप फिर समझ नहीं पाएंगे, आप सीख नहीं सकते। सही। तो अपने जहन के अंदर, अपने अंदर से आपने ये खौफ खत्म करना है। ये खौफ जो है ना, अपने जहन से, अपने दिल से इस खौफ को ख़त्म करना है कि मुझसे गलती होगी तो मैं कर नहीं सकूँगा, मेरे लिए मुश्किल होगा। अगर मुझसे उस्ताद साहब ने पूछ लिया और मैंने गलत बता दिया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं स्क्रीन से बाहर निकल के डंडा से आपको मारना शुरू नहीं कर दूंगा मैं। सही है। ना ही यहाँ पे आप लोगों को डांटा जाएगा, ना ही यहाँ पे आप लोगों की जो है वो इज्जत की नीलामी होगी, ना ही आपको यहाँ पे रुस्वा किया जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सही। यहाँ पे आप लोग सीखने के लिए आए हैं,
تو انشاءاللہ العزیز اگر سیکھنا چاہیں گے، ہمت کریں گے تو سیکھیں گے. صحیح. تو اس بات سے مت ڈریے گا کہ آپ لوگ غلطی کریں گے، اس بات سے نہیں ڈریے گا. صحیح. اچھا جی. بس انسان کو محنت کرنے والا ہونا چاہیے. انسان محنت کرے، غلطیاں کرے، مسئلہ نہیں ہے، چلتے رہے گا. دنیا کے اندر تو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور کیا مسئلہ ہے اس کے اندر. تو غلطی کرنے سے نہیں ڈریے گا. غلطی ہوگی، میں ابھی سے بتا رہا ہوں، ہر طالب علم سوچ لے کہ اس سے غلطی ہوگی. صحیح. ابھی کل آپ لوگوں کا سبق گزرا، کل آپ لوگوں کے سبق کے اندر ایک کلمہ گزرا، اسرائیل. میں نے پہلے کہا یہ اسرائیل کلمہ جمع منتہی الجموع ہے. پھر مجھے خیال آیا کہ یہ جمع منتہی الجموع نہیں ہے، اس کے اندر تو عجمہ ہے اور علم ہے. تو پہلے میں نے غلط کہا، پھر اس غلطی کی اصلاح کی. صحیح. غلطی کی اصلاح کی. اگر میں اس بات سے خوف کر لوں کہ مجھ سے غلطی ہوگی تو یہ اچھا نہیں ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہوگا، میری نیلامی ہوگی، رسوائی ہوگی، تو میں کبھی بھی کل یہ اصلاح نہیں کرتا. صحیح. کبھی بھی میں یہ اصلاح نہیں کرتا. میں یہ بولتا تھا کہ بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جمع منتہی الجموع تو ممکن ہی نہیں ہے، مجھے پتا ہے یہاں ممکن نہیں ہے. تو اگر جو ہے یہاں پہ مطلب یہ کہ میں خالی ڈر جاتا اور آپ لوگوں کو نہیں بتاتا اس ڈر کی وجہ سے، تو آپ لوگ علم سے محروم ہو جاتے. لیکن یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کی اصلاح کری اور اپنی غلطی کی اصلاح کری یہاں پہ. صحیح. تو آپ لوگوں کو اس کلمے کے بارے میں علم آ گیا. اسی طرح اگر آپ لوگ بھی غلطی سے ڈریں گے، صحیح، اور یعنی کہ حوصلہ نہیں رکھیں گے، تو آپ لوگوں کو علم نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ غلطی سے ڈرنا چھوڑ دیں گے کہ غلطی ہوتی ہے تو ہمیں تو ہمارا کام محنت کرنا ہے، نتیجہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، علم دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے تو غلطیاں تو ہوں گی، لیکن آپ اس غلطیوں سے سیکھیں گے. اس بات کو ذہن کے اندر رکھ لیے گا. صحیح. کہ جو غلطیاں ہوتی ہیں نا، یہ انسان کو سکھاتی ہیں. صحیح. انسان کو برباد نہیں کرتی. ہاں، ان غلطیوں سے اگر کچھ نہ سیکھے انسان تو برباد ہوتا ہے. صحیح. حدیث شریف کے اندر کیا ہے کہ لا عقل الا ذو تجربۃ، کہ عقل مند شخص وہ ہے جو تجربے کار ہو. اور تجربہ حاصل کرنے کے لیے انسان کو اس کام کو بار 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 کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے تجربے کار بنتا ہے. اور جب ایک کام بار بار کرتا ہے، اس کام کے اندر لگا رہتا ہے، تو اس کام میں کئی غلطیاں کرتا ہے وہ، پھر جا کے وہ تجربے کار بنتا ہے. تو اگر آپ نے نحوی ترکیب کے اندر تجربے کار بننا ہے، ایک سمجھدار بننا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہے، تو آپ سے جو غلطیاں ہوں گی آپ نے اس سے سیکھنا ہے، نہ کہ آپ نے ان غلطیوں سے ڈرنا ہے. صحیح. اچھا جی. آگے ترکیب دیکھ لیں. اللہ الرحمن، اس کی ترکیب آپ لوگ اپنے پاس حل کریں. صحیح. میں 2 منٹ کا وقفہ لے رہا ہوں. حل کرنے کے بعد جو حل کر لے وہ ہاتھ اٹھائے. صحیح. جو کاپی پر حل کرے وہ ہاتھ اٹھائے. دیکھیں اب یہ کلاس کے اندر ہی آپ کی مشغولی ہے، آپ لوگوں کو الگ سے ٹائم فی الحال دینا نہیں پڑ رہا ہر ترکیب کے لیے، کہ آپ کلاس کے وقت الگ سے ٹائم دیں. صحیح. یہیں پہ آپ کا حل ہو رہا ہے، کتنی اچھی بات ہے. صحیح. تو اس کو آپ لوگ حل کریں اور حل کرنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھائیں.
जिन्होंने अल्लाह ये ऊपर वाली तरकीब है ना अल्लाह रहमान वाली, इसको हल कर लिया है, वो नीचे की दो तरकीबें ये आप लोगों का होमवर्क है। सही, ये दो तरकीब आप हल करके तस्वीर खींच के व्हाट्सएप पे डाल दें आप अभी हाथ के हाथ। अच्छा जी, अब्दुस सबूर। अब्दुस सबूर। जी। तौहीद आलम। वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तरकीब हल करें। अल्लाह एक है। जी हल करें। अल्लाह इस्म। हाँ। हेलो, आपकी सही आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। जी बोलें। अल्लाह। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। कारी वासिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हल करें। अल्लाहुर रहमान हजरत। जी जी। अल्लाह अल्लाहु मुब्तदा और रहमान खबर। लफ्ज अल्लाह को मुब्तदा मुब्तदा क्यों बनाया? इसम। लफ्ज अल्लाह को मुब्तदा जी, क्यों बनाया? इसम होने की वजह से हजरत। हाँ, इस्म तो है पर जुमले के शुरू में आ रहा है जुमले के शुरू। जी और मारफा है। जी। लफ्ज अल्लाह मारफा है। अ, जी मारफा है। कैसे पता चला? मुअर्रब बिल लाम है, अलिफ लाम है शुरू में से। सही। अच्छा, अब तरकीब क्या करेंगे? मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तर्जुमा क्या हुआ? अल्लाह रहमान है। अल्लाह रहमान है। एराब क्या होगा? जम्मा आएगा। दोनों पे? अल्लाहु और रहमानु। जी हजरत। मिला के पढ़ें। अल्लाहुर रहमानु। अल्लाहुर रहमान, बिल्कुल सही। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, तो ये दो जुमले अभी हल करके आप लोग भेज दें ताकि आप लोगों का होमवर्क भी जमा हो जाए। सही। अच्छा जी, बहुत सारे तलबा माशाल्लाह भेज भी रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छा जी, सर्फ का सबक देख लें अब आप लोग। फेले अमर मजहूल की जो गिरदान है ना, पहले फेले अमर मालूम की गिरदान दी थी, अब फेले अमर मजहूल की गिरदान, ये आप लोगों का सबक है। सही। यहाँ कहाँ आपको दी है? ग्रुप में डालिए ना। हाँ, ग्रुप में इसकी पीडीएफ डली हुई है। तो ये फेले अमर मालूम हो गई, फेले अमर मजहूल की गिरदान है। लियुनसर लियुनसरा लियुनसरू लितुनसर लितुनसरा लियुनसरना लितुनसर लितुनसरा लितुनसरू लितुनसरी लितुनसरा लितुनसरना लिउनसर लिनुनसर, ये गिरदान आप लोगों का सबक है। सही। चलें जी, कोशिश करके अभी हाथ के हाथ तरकीब हल करके भेज दें, वो ज़्यादा बेहतर है। सही। और अभी क्लास ऑफ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।